Hare Krishna, dear students. I hope you all are doing great and taking care of yourself and your family. Yes? Okay, so today हमें क्या करना है? हमें आज एक नया chapter start करना है, right? And that is a very simple and short chapter. Okay? So please open to page number 55. Which page number? Page number 55 of your book, Essential English. Okay, so the lesson number is lesson number 10, Singing for the Emperor. That's the title of your chapter. And I expect you all to hold a pen in your hand and read with me. Okay, आप सब मेरे साथ read करेंगे और there should be a pen in your hand to underline the difficult words. Okay? Should we start? Of course we should start. Okay, let's start. Chapter 10, Singing for the Emperor. About the lesson. This lesson is all about the quality of singing between Akbar's court singer Tansen and his teacher Guru Haridas. Let us read the story and come to know why Guru Haridas' music was truly something from another world. इसमें हमें बोल रहे हैं कि इस लेसन में बताया जाएगा जो एक किंग था अकबर, उसके कोर्ट में एक सिंगर था. क्या नाम था उसका? तानसेन. और तानसेन के सिंगिंग टीचर कौन थे? गुरु हरिदास. इसमें गुरु हरिदास और तानसेन की सिंगिंग क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम. ओके, लेट्स सी व्हाट्स गिवन. Tansen was one of the greatest singers of Hindustani classical music. Underline this, Hindustani classical music. He was Emperor Akbar's court singer. Akbar was a lover of the arts, music and learning. He encouraged musicians and artists. Akbar was so charmed by Tansen's singing that he thought no better music existed in the world than Tansen's. इसमें हमें ये बताया गया है कि तानसेन कौन सा म्यूज़िक सिंग करते थे? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. और वो अकबर के कोर्ट में एक सिंगर थे. और फिर हमें ये बताया गया है कि अकबर की क्वालिटीज़ क्या थी. अकबर को आर्ट, म्यूज़िक और लर्निंग में काफ़ी इंटरेस्ट था. और वो जो एंकरेज मतलब प्रोत्साहन, मदद करते थे किनकी? म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट की. और अकबर को तानसेन की सिंगिंग इतनी अच्छी लगती थी कि अकबर को ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया में, इन द एंटायर वर्ल्ड, तानसेन से अच्छा कोई भी तानसेन से बेटर सिंगर कोई भी नहीं है. Okay, let's see what happened next. One day, after a mesmerizing concert at the court, Akbar said to Tansen, "Tansen, you sang so beautifully that we forgot everything else in the world and were lost in your song. There is no better singer in the world than you." Tansen humbly replied, "Your Highness, thank you for your kind words. But there is one person whose music is sweeter than mine." Akbar was in disbelief. "That's impossible. Who is that great man?" फिर एक दिन क्या हुआ? एक बहुत ही सुंदर, मन भावन, mesmerizing concert at the court. Means Tansen was singing in the court and everyone was listening to him. उस कॉन्सर्ट के बाद अकबर ने तानसेन को बोला, क्या बोले अकबर? कि तुमने इतना सुंदर तरीके से गाया कि हम सब जो दूसरी चीज़ें थी वो सब भूल गए थे और हम पूरी तरीके से तुम्हारे गाने में खो गए थे. तुमसे अच्छा सिंगर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है. तो तानसेन ने ये जब सुना तो उसने हम्बली मतलब सॉफ्टली रिप्लाई करा
कि एम्परर थैंक यू, आपने जो मेरी तारीफ करी, पर मुझसे भी अच्छा सिंगर एक है। सो अकबर वॉज इन डिसबिलीफ, मतलब तानसेन की ये बात सुनकर अकबर को विश्वास ही नहीं हुआ कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन है वो जो तुमसे भी अच्छा गाता है। मतलब जब तानसेन खुद ही, उसकी सिंगिंग इतनी बेस्ट है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, तो उससे अच्छा और कौन गा सकता है। नेक्स्ट पेज। My lord, it is my teacher Guru Haridas, said Tansin. Then I must listen to him sing at once, the emperor said impatiently. Tansin replied, that is very difficult, Your Highness. Guru Haridas will not be ready to come to the court or sing for anyone but himself. If you are so eager to listen to him, let's go to his hut and hide behind the bushes. Where the Guru begins his practice, you will know what an extraordinary singer he is. फिर जब अकबर ने तानसेन से पूछा कि कौन है वो जो तुमसे भी अच्छा गाता है, सो तानसेन रिप्लाइड कि वो मेरे टीचर हैं गुरु हरिदास, जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। तो अकबर बोलते हैं कि तो फिर हमें अभी चलना पड़ेगा और उनको सुनना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकता, मुझे सुनना है कि वो कितना अच्छा गाते हैं। तो तानसेन फिर अकबर को बोलते हैं कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो गुरु हरिदास है, जो मेरे गुरु है, वो किसी के भी घर नहीं जाते हैं और कोर्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और वो किसी और के लिए नहीं गाता है, वो सिर्फ अपने लिए, बट हिमसेल्फ, मतलब वो सिर्फ अपने लिए गाते हैं, वो किसी और के लिए नहीं गाते। तो हमें तो दिक्कत आ जाएगी, फिर आप कैसे सुन पाएंगे। तो एक काम हो सकता है कि जब वो अपने घर पर गाते हैं खुद के लिए, तो हम उनके घर के पीछे वाले पेड़ के पीछे उनका गाना सुन सकते हैं, और जब आपको पता चलेगा कितना अच्छा गाता है। Guru Haridas would sing every day early in the morning before sunrise, sitting on the bank of the river Yamuna. Akbar and Tansin traveled at night and reached the Guru's house before the time of practice. As the singing began, Akbar felt the world melting away. He was in an endless world of joy. He had never been so influenced by music till then. क्या कर गुरु हरिदास हर सुबह जब सनराइज होता है उसके पहले ऑन दी बैंक, जब जो कॉर्नर्स होते हैं उधर गुरु हरिदास पास जाकर उधर गाते हैं। तो अकबर, क्योंकि वो गाते हैं, वो रात ही उन्होंने अपने कोर्ट गुरु हरिदास के घर जाने का रास्ता ट्रैवलिंग शुरू करी, और वो गुरु हरिदास पहुंच गए। जब करते हैं उस एक डे पहले, और फिर जब गुरु हरिदास को गाते सुना, the world was melting, was floating in an endless world of joy. मतलब अकबर को इतनी खुशी हुई थी, मतलब was not able to believe कि इतना अच्छा भी गा सकता है, और उसको म्यूजिक से इतना प्रभाव अभी नहीं हुआ ना गुरु हरिदास का गाना सुनकर हुआ था, क्योंकि was so exceptionally beautiful, इतना सुंदर, no words to explain that. After returning to court, Akbar said to Tansin, Guru Haridas' music was from another world. Why is it that you cannot sing like him? There is a great difference between my singing and angel singing. Your Honor, sing. I sing for the emperor of the sing for the emperor of the world. जब गाना सुनेंगे अकबर और तानसेन वापस से अपने कोर्ट पहुंचे, तो अकबर ने कहा तानसेन कि गुरु हरिदास सिंगिंग वो किसी अलग
दुनिया की आवाज मीन्स इट वॉज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। तुम अच्छा क्यों नहीं गा सकते हो, तुम तो उन्हीं के राइट। किस स्टूडेंट है गुरु हरिदास, तो तुम क्यों नहीं अच्छा गा सकते हो। तो इसका बहुत सुंदर जवाब है मैं हूँ फॉर द एम्परर ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली के जो किंग है अकबर मतलब आप, मैं उनके लिए गाता हूँ। और जो मेरे गुरु है वो गाते हैं फॉर द एम्परर ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया के राजा के लिए। एम्परर ऑफ यूनिवर्स कौन है, ही इज अवर। ये डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जो कार्य रहता है कुछ करने का, अगर वो बोलता है तो इंटेंसिटी होती है करने की, वो भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने डिस्कवरी पर देखा होगा कि जब एक टाइगर एक डियर के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए और उसको खाने के लिए, तो टाइगर भी भागता है डियर के पीछे और डियर भी भागता है, राइट। पर हिरण भागने का कारण क्या होता है, अपना जीवन को बचाना। और शेर भागने का कारण होता है खाना को, खाना मतलब खाने को पकड़ ले, जो फूड है उसको पकड़ ले। आप बताइए डियर और शेर जो कारण है उनसे ज्यादा हैवी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो डेंसिटी ज्यादा इसकी होने में बिकॉज रनिंग whereas tiger running just for food. So similarly सेन सिर्फ एक दिल्ली किंग के लिए गाते हैं, पर जो गुरु है पूरे जगत पूरे वर्ल्ड एम्पायर गाता है, इसलिए उनकी इतनी एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है क्योंकि उनका कारण है वो अलग है तालीम से, इसीलिए इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो दिस इज चैप्टर। इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि जो भी काम करते हैं उसका जो कारण होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इससे हमें इंस्पिरेशन, राइट। ओके, continue the exercise in our next lecture. Thank you so much, students. Hare Krishna.